Hey, class 9. We have already completed some of the cell organelles, some are left. Okay. So, today we are going to read about lysosomes. Okay. Lysosomes. What do you mean by lysosomes? These are membrane bound organelles. Okay. Lysosomes are membrane bound organelles or they are vesicles. They are mainly in the structure of vesicles. Okay, and they contain some powerful digesting enzymes. Okay, they contain some powerful digesting enzymes. These enzymes are made by RER. I have already told you that RER through its ribosomes produce some of the enzymes which is then transferred to Golgi apparatus and then to what, lysosomes. इनका जो enzymes है वो कौन बनाता है? RER का ribosomes. Clear? These enzymes have a strong capacity to digest the organic materials. जितना भी organic materials है वो डाइजेस्ट कर सकता है ये एंजाइम्स. क्लियर? लेकिन ये लाइसोसोम्स आरबीसी में एब्सेंट है. इट इज एब्सेंट इन आरबीसी. कि there's a question that in maximum places many organelles are absent in RBC, mainly mammalian RBC. Why? It is a question for you. Okay, search it. Yesterday I have given you a question that why the inner membrane of mitochondria is folded. First question. This is the second question. Why things like lysosomes, Golgi apparatus, they are absent in mammalian RBC. इसका आंसर भी ढूंढ के खुद लिखो और बताओ मुझे. ओके, फंक्शंस देखते हैं. बेसिकली लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय और किल्स द फॉरेन पार्टिकल्स. फॉरेन पार्टिकल्स को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, मार देता है. लाइक वायरस, बैक्टीरिया, जो भी अंदर आएगा उसको मार देगा. समझ में आया? क्लियर? दूसरा, कोई भी सेल ऑर्गेनेल अगर खराब हो गया है, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल, या वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करेगा? उसको रिमूव कर देगा. इट रिमूव्स दिस worn out cell organelle or poorly working cell organelle. Okay, and they will clean the cell. As they clean the cell, they are called as cellular housekeepers. Okay, they are called as cellular housekeepers or scavengers. Clear? Scavengers क्यों बोलते हैं? क्योंकि what do scavenger do? They mainly clean up the dead things or what the waste things. जितना भी बाहर कचरा पड़ा रहेगा, scavengers आके उसको खा जाएंगे, क्लीन कर देंगे. उसी तरह लाइसोसोम्स भी सेल के अंदर जितना वेस्ट है सबको क्लियर कर देता है. कभी कभी अगर सेलुलर डिस्टर्बेंस हुआ, इफ देयर एनी सेलुलर डिस्टर्बेंस जिसके वजह से सेल डैमेज हो गया, ओके, इफ द सेल डैमेजेस, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइसोसोम खुद ब खुद फट जाएगा. इट बर्स्ट बाय itself and the digestive enzyme will come out and digest the whole cell. पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा. लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स है. एंजाइम्स अगर लाइसोसोम फट गया तो एंजाइम्स बाहर निकलेगा और पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा. देखो, पूरे सेल को बचाने के लिए खुद ब खुद फट जा रहा है. इट्स बर्स्टिंग ऑन इट्स ओन, खुद को मार रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज suicidal sac or bag of cell. Clear? It is called as suicidal sac or bag of cell. समझ में आया लाइसोसोम्स क्या है? Getting my point? Let's move on to the next organelle, plastids. Plastids are only found in plant cells. Only plant cells. Okay? And they are also membrane bound. And actually they have two layers of membrane. Okay, two layers. Clear? They are quite like what? Mitochondria के पास भी दो लेयर है, इसके पास भी दो लेयर है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक और चीज है, उसका अपना डीएनए, अपना राइबोसोम. प्लास्टिड के पास भी वही है. इट हैज इट्स ओन डीएनए, ओन राइबोसोम्स. Clear? Okay.
Now plastids are of three types: chloroplast, chromoplast, leucoplast. Okay, first goes through chloroplast. Chloroplast का कलर कैसा है? It is green in color. Okay, why? Because chloroplast color is green because it contains chlorophyll. It contains chlorophyll. Clear? Very simple. These chloroplasts are called as the kitchen of cell. Kitchen of cell, because it helps in photosynthesis. Clear? इसका मेन काम क्या है? It traps the sunlight and help in photosynthesis. As because photosynthesis takes place in chloroplast, it is called as the kitchen of the cell. Clear? Getting my point? क्यों बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है, कलर क्या है, कलर ग्रीन क्यों है, क्यों किचन ऑफ सेल बोलते हैं, क्या काम है, क्या फंक्शन है. Let me show you the structure. This is the structure of a chloroplast. Okay, देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन दिया गया है. यहाँ दो चीज़ बहुत जानने वाली ज़रूरी चीज़ है, वो है ये देख रहे हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको, ये बना रहा हूँ मैं, ये वाला एक थालाकॉइड है, ये देखो ये एक सर्कुलर डिस्क लाइक सब्सटेंस है, डिस्क जैसा है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. ओके, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड. एक को अगर ऐसा डिस्क बहुत सारा होगा उसको हम बोलेंगे ग्राना. ओके ओके, थाइलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड, फ्लैट मतलब फ्लैट है, देखो ऊपर तरफ फ्लैट है, फ्लैटेंड डिस्क लाइक और डिस्कॉइड सैक. इसको हम डिस्क लाइक या डिस्कॉइड सैक, सैक मीन्स पाउच. ओके, दिस थाइलाकॉइड कंटेन्स क्लोरोफिल. ओके, दिस थाइलाकॉइड कंटेन्स क्लोरोफिल. देख सकते हो ऐसा बहुत सा थाइलाकॉइड मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे ग्रानम और ग्राना. ओके, दिस ग्राना आर द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स का स्टैक या पूरा एक बहुत सारा थाइलाकॉइड्स एक साथ रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे ग्राना. ओके, GRANA, ग्राना. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? एंड ऑल दिस ग्राना आर एम्बेडेड इन ए जेल लाइक मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स मीन्स आई हैव टोल्ड यू समथिंग दैट इज फाउंड इनसाइड द स्पेस ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस. किसी चीज़ के अंदर हो तो वो मैट्रिक्स है. यहाँ पे मेनली लिक्विड या जेल लाइक स्ट्रक्चर अंदर पाया जाएगा. देखो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स है ना अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. ओके, स्ट्रोमा. सो स्ट्रोमा इज द होमोजीनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राना आर एम्बेडेड. स्ट्रोमा एक मैट्रिक्स है और वहां पे ग्राना एम्बेड हुआ है या ग्राना वहां पे मौजूद है. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, समझ में आया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. सो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ओनली ग्रीन पिगमेंट्स ही नहीं बल्कि क्लोरोफिल के बदले थोड़ा सा ऑरेंज और येलो कलर का पिगमेंट्स भी पाया जाता है. ऑरेंज और येलो कलर का पिगमेंट्स, लेकिन वो बहुत कम है. इट इज फाउंड इन वेरी लेस नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी देम. ओके, इसलिए या फिर कभी कभी ऐसा होता है क्लोरोफिल के कई पार्ट में लाइट ग्रीन कलर दिखाई देता है, लाइट ग्रीन. वो होता है मेनली येलो पिगमेंट्स की वजह से. ओके ओके, क्लोरोप्लास्ट खत्म. लेट्स गो टू क्रोमोप्लास्ट. ओके, chromoplast. What do you mean by chromoplast? Chromoplast are the color plastids. Okay, they are the colored plastid, but they are other than green. Okay, ये कलर प्लास्टिड है लेकिन ये ग्रीन से अलग है. मतलब ग्रीन को छोड़ के जितना कलर पिगमेंट है सबको हम क्रोमोप्लास्ट बोल के बोल सकते हैं. क्लियर? इट एक्चुअली गिव्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, फ्लावर्स और फ्रूट्स के जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट देता है. एक्चुअली इट हेल्प्स फॉर गिविंग कलर टू मेनली फ्लावर्स विच हेल्प फॉर पोलिनेशन. इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे विच विल हेल्प इन पोलिनेशन. क्लियर? नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट. इट इज कलरलेस एंड इट कैन चेंज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड. ये कलरलेस है लेकिन ये चाहे तो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट बन सकता है. जैसा पिगमेंट यहाँ डालोगे वैसा ये प्लास्ट बन जाएगा. ग्रीन डालोगे तो ये
ल्यूकोप्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, पिंक डालोगे क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। समझ में? जिस तरह पिगमेंट तुम डालोगे या जिस तरह नेचुरल पिगमेंट आता है इसके पास, ये चेंज हो सकता है, इट कैन बी चेंज्ड नेचुरली। ओके, इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सबको स्टोर करता है ये। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी और बहुत सारे काइंड के प्लास्ट हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट होते हैं, इलियोप्लास्ट होते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं। ये एग्जाम्पल ये तुम्हारे तो कोर्स में नहीं है, बस ऐसा अलग अलग और प्लास्ट है इसके वैरायटी के अंदर जो कि अलग अलग चीज स्टोर करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, प्लास्टिड्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है एंड दीज आर मेनली स्टोरेज सैक। Vacuoles are meant for storage, which mainly contains solid or liquid things. Okay, it is mainly meant for storage, which mainly stores what? Liquids and solid contents. Okay, liquid और solid content ये क्या करता है? ये रखता है अपने पास स्टोर करके। Okay, एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल बहुत छोटा होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा। क्लियर? और प्लांट सेल में तो वैक्यूल बीच में होता है, सेंट्रल लोकेशन, और कभी कभी तो इतना बड़ा होता है कि एक प्लांट सेल में बीच में बड़ा सा वैक्यूल और न्यूक्लियस जो है वो साइड में होता है, यहाँ पे खिसक जाता है साइड में। देखो ये बड़ा सा वैक्यूल बनेगा और न्यूक्लियस साइड में खिसक जाएगा, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और वैक्यूल बहुत छोटा सा। ओके, लेकिन प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल और वो भी सेंट्रल लोकेशन बीच में। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस आर पुश्ड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो फंक्शन क्या है? मेनली इन एनिमल सेल्स, ओके, वैक्यूल्स स्टोर समथिंग लाइक वाटर, लाइक ग्लाइकोजन, ओके, लाइक प्रोटीन्स। ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, प्रोटीन्स ये सब स्टोर करते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या करते हैं? मेनली दे स्टोर सेल सैप। ओके, सेल सैप। सेल सैप क्या है? सेल सैप इज द watery solution. Cell sap is the watery solution which mainly contains sugars, amino acids, okay, minerals, etc. तो प्लांट में, एनिमल सेल्स में ये सब पाया जाए, ये सब स्टोर होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो स्टोर होता है ना, उसका खास नाम है सेल सैप। उसी तरह कंटेंट्स है, बट द नेम इज डिफरेंट बिकॉज द काइंड इज समवट डिफरेंट। ये पूरा एक सोल्यूशन रहेगा। दिस वाटरी सोल्यूशन विल कंटेन शुगर, एमिनो एसिड्स एंड मिनरल्स। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, दिस वैक्यूल्स ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो regulation. What do you mean by osmoregulation? Osmoregulation means balancing the osmotic pressure, means osmosis को maintain करना। अगर अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर भेजेगा, अगर बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर लाएगा। ये मेंटेन करता है एक्चुअली। osmoregulation means maintaining the osmotic pressure. ओके, तो ये क्या करता है? सेल्स में osmoregulation कराता है, प्लस सेल्स को टर्जिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ओके, इट प्रोवाइड्स द सेल्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। कई जगह में ऐसा देखा भी गया है कि ये वैक्यूल्स कहीं कहीं फूड वैक्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, लाइक एमोइबा। एमोइबा हैज अ फूड वैक्यूल, मीन्स यहाँ पे वैक्यूल फूड को स्टोर करने और डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वही फूड वैक्यूल बाद में कन्वर्ट होता है एक्सक्रेटिंग वैक्यूल के हिसाब से। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया, वेस्ट तो बनेगा ही, उसको ही बाहर भेजने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इसी वैक्यूल का। समझ में आया? मीन्स इट इज यूज्ड एज फूड वैक्यूल ऑल्सो एंड इट इज यूज्ड फॉर एक्सपेलिंग वेस्ट फ्रॉम सेल ऑल्सो। क्लियर? समझ में आया? वैक्यूल्स, हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्यूल का। वैक्यूल का एक मेम्ब्रेन होता है, बाहरी हिस्सा। ये वैक्यूल का बाहरी हिस्सा ये है। ये आउटर कवरिंग को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे?
Tonoplast. So the outer membrane of vacuole is called as tonoplast. Clear? So today we read about lysosomes, plastids and vacuoles. Go through it properly. I shall send you the notes. If any doubt, please ask me. Okay? Have a good day.